ہلو ہلو ڈاکٹر حبیب سر. امان سر. ہاں جی جی بولیے سعید صاحب. ابھی وہ ملکہ صاحبہ جڑ رہی کیا؟ فون پہ بتا رہی تھی ابھی میں جڑ رہی ہوں 2 منٹ میں. اچھا تو بشیرہ سلطانہ بھی نہیں نا میڈم؟ اگر ان کی دیکھیے 2 منٹ انتظار کر لیں گے, اگر وہ بھی جڑ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ ہی حد تشکر پیش کر دیں. ورنہ میرا یہ فریضہ بنے گا, میں یہ کروں گا انشاءاللہ. ہاں ٹھیک ٹھیک. تو ناظرین 2 منٹ انتظار کرتے ہیں. السلام علیکم سعید صاحب, میں کچھ بات کر سکتا؟ جی بولیے بولیے غیاث صاحب بولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر صاحب جی بس سب کے لیے تو مبارکباد. اور صرف مجھے ایک بات کہنی چاہیے تھی کہ جو ہے ہمارے انجمن کے جانب سے صدر انجمن اور تمام جو ہے ہمارے انجمن کے جانب سے دوردرشن میں جو ہے جو اردو کے ساتھ زیادہ والدانہ محبت ہے, تو ان سے یہ درخواست کی جائے کہ جس طرح شمال سے یا وغیرہ یا دوسرے حیدرآباد کرناٹکا وغیرہ سے جو اردو اخبار جاری ہوتے ہیں سرکار کی جانب سے, تمل ناڈو میں بھی جو ہے اردو والوں کے لیے یہ چاہے کہ میں ایک بار یا ایسا کچھ اس کا انتظام کریں, تو اگر اللہ چاہے تو ہمارے یونیورسٹی کی جانب سے اقدام اٹھائیں تو ضرور ہو سکتے ہیں. یہ بھی سنا تھا کہ ہمارے لطیف پاشا صاحب پھر ان کا یہاں پر ٹرانسفر ہوا ہے اور ہمیں ریاض برابر نہیں آتا جسے نہیں آتا آواز. ریاض جی آپ صاحب آپ کی آواز سنائی نہیں دیتی برابر. ہلو ہلو ریاض صاحب آپ کا نیٹ ورک ٹھیک نہیں ہے نا. ارے آواز بولیے بولیے غیاث صاحب آ رہی آواز. جی جی تو لطیف پاشا صاحب بھی جو یہاں پر ٹرانسفر ہوا سننے میں آیا ہے, تو یہ ہم اردو والوں کے لیے ایک اچھا ہوئے گا تاکہ اگر یہ بات مدراس یونیورسٹی کے بھی ہمارے مدراس یونیورسٹی سے پلس یہ جو ہمارا انجمن اپنے خدیم دونوں کے جانب سے ان تک ان کے ذریعے سرکار کو پہنچائی جائے تو اردو والوں کے لیے ایک بہت اچھی خوشخبری رہے گی. بس میری یہی بات اس کہنا چاہیے تھا. اور دوسرے بھی جو ہے بڑھ چڑھ کر جتنے بھی ہمارے انڈسٹریلسٹ وغیرہ ہیں اردو والے جو جتنے بھی الحمدللہ اچھے طور سے انہیں نوازا ہے مالی تعاون سے, ان سے بھی مل کر ہم لوگ جو ہے انشاءاللہ ہمارے یونیورسٹی میں انڈومنٹس کے لیے کچھ کریں گے, اور اس کے ان پیسوں کی بدولت جو بھی بچے میں اردو میں داخلہ لیں گے اس کا ان کو دیکھ ان کی فیس وغیرہ ادا کرنے میں ان بچوں کے جو ہے کامیاب ہو جائے. بس یہی 2 بات کہنی تھی. جزاک اللہ خیرا, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر امان اللہ صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کلمات وبرکاتہ. تشکر سے میڈم مجلس کم فرمائے. ایک مرتبہ ان کو گیلیکسی نام سے ہی جڑے ہیں, بلا لیجیے اگر ہیں تو بات ہو جائے. ڈاکٹر ملکہ خورشید صاحبہ جڑ چکی ہیں. ڈاکٹر ملکہ خورشید صاحبہ ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں جڑی ہیں نہیں ہے بھائی, اسکرین میں تو نہیں نظر آ رہا. ہاں وہ کہہ رہے تھے کہ گیلیکسی نام سے جڑیں گے. ٹھیک ہے, نہیں جڑیں تو کیا کرتے ہیں, مجبوری ہے نیٹ ورک کی. ہاں بہت پرابلم. وقت بھی کافی ہو چکا, 2 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں. آپ اختتام کر دیں. دیجیے اگر نہیں ہے تو پھر چلیے ایک بار چیک کر لیجیے. جو بھاگ امی کے پاس ڈاکٹر بشیرہ سلطانہ صاحبہ ہیں. امی کے پاس ڈاکٹر بشیرہ سلطانہ نہیں جڑی ہیں وہ بھی. تو ڈاکٹر امان اللہ صاحب خطاب کر رہے ہیں. جی جی حاضرین اکرام,
अंजुमन अबनाए ख़दीम का ये सालाना इजलास अपने इख्तिताम पर है। तवक्कुओं से ज़्यादा तमाम अरकान ने इसमें शिरकत हासिल की है। बाज़ लोग तकनीकी मसाइल की वजह से नहीं जुड़ पाए, लेकिन खुशी इस बात की है कि कभी लोग आते रहे, कभी बाहर निकलते रहे, ये सिलसिला तो जारी था। तकरीबन अरकान इस महफिल में शरीक रहे और सीनियर असातिज़ा को सुनते रहे। आज के इस इजलास के मेहमान खुसूसी प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र अली शहरी साहब, जिनको और तमाम मेहमानों को भी चूँकि मेरी तबीयत नासाज थी और दीगर वजूहात की बिना पर हम लोग बाकायदा तौर पर आपसे रुजू नहीं हो सके, लेकिन सिर्फ अंजुमन के नाम पर जब ये प्रोग्राम का इनेकाद हुआ तो आप तमाम हजरात ने अंजुमन के हवाले से अंजुमन की मोहब्बत में अपना वक्त सर्व करते हुए इस महफिल में शरीक रहे। तो इसलिए मैं प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र अली शहरी साहब का बसमीम क़ल्ब शुक्रिया अदा करता हूँ। मेहमाना ने एजाज़ी उस्ताद मुहतरम प्रोफेसर सैयद सज्जाद हुसैन साहब का भी ममनून हूँ कि आपने अपनी ज़ाती मसरूफियात को भी ताले रखते हुए हमारे इस अंजुमन के प्रोग्राम के हवाले से आपने हमारे साथ जुड़ा और बहुत सारी बातें बताई, जिससे नई नस्ल की एक राह मिल सकती है। और डॉक्टर परवीन फातिमा साहबा जो इस अंजुमन की फ़ाल सरपरस्त भी हैं और रुकन भी हैं, जब भी कोई अक्टूबर के प्रोग्राम के हवाले से बात आती है तो आप पेश रहती हैं। अभी की तहरीक है कि दरअसल ये प्रोग्राम आज मुनाफिद हो पाया, वरना मैं उस काबिल मेरी तबीयत उस लायक नहीं थी कि मैं इस प्रोग्राम के लिए आमादा हो जाता। बहरकैफ आपकी हिम्मत अफजाई और हौसला अफजाई और साथ इस महफिल में शरीक रहना, ये मेरे लिए भी हौसला अफजा है और तमाम दीगर अरकान के लिए भी बहुत ही अहम बात है कि आप लोग इस तरफ हमको मुतवज्जा किया था। आप इस महफिल में जुड़ने के लिए मैं आपका समीम क़ल्ब से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे दीगर अरकान और सरपरस्ताराने अंजुमन में डॉक्टर हयात इफ्तिखार साहब हैं, सीनियर असातिज़ा में, और दीगर मुज़फ़्फ़रुद्दीन साहब हैं, और तमाम अरकान का मैं फ़र्दन शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोग्राम की निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देना वो बहुत अहम था, जिसको आखिरी यानी 11th आवर में हमने डॉक्टर सईदुद्दीन साहब को आवाज़ दी थी। डॉक्टर सईदुद्दीन साहब ने बिला कोई सबब के हूबहू हमारी इस दरख्वास्त को कबूल कर लिया और इस तकरीबन ढाई घंटे के इस प्रोग्राम को बहुस्न खूबी अंजाम तक पहुँचाने के लिए आपने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए, इसलिए हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर गौसिया सईदा साहबा का और तमाम अरकान का मैं फ़र्दन शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी जहन इतना ये नहीं है कि मैं और खुलकर बात कर सकूँ। बहरकैफ जिनका नाम मैं ले रहा हूँ या जिनका नाम मैं लेने से रह रहा हूँ, बहरकैफ तमाम असातिज़ा का जो इस अंजुमन में के अरकान भी हैं और उर्दू के असातिज़ा की हैसियत से बड़े बड़े कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, तमाम का फ़र्दन शुक्रिया। और हमारे रिसर्च स्कॉलर का और हमारे तलबाए अजीज़ का जो इस अंजुमन के अरकान भी हैं और हमारे शोबे में अभी रिसर्च स्कॉलर के तौर पर काम भी कर रहे हैं, उन तमाम का भी मैं फ़र्दन शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर आज के लिए डॉक्टर मोहम्मद कासमी साहब का और तराने को सुरीली आवाज़ में सुनाने वाले जनाब जज साहब का और नाज शरीफ के निगरानी पेश करने वाले अमरार साहब का और मुहतरमा मलिका खुर्शीद साहबा का भी, क्योंकि हमारे मेहमान एजाज़ी के तौर पर जुड़ी रही, लेकिन उनके यहाँ तकनीकी मसाइल की वजह से प्रोग्राम में जुड़कर 1 या 2 मिनट के लिए कुछ शुरू करें, अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहती थी,
लेकिन बावजूद उनकी कोशिश के भी वो जुड़ नहीं सकी। आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस महफिल में शिरकत करके इस महफिल की रौनक बढ़ाई। और सबसे आखिर में ये मेरा फरीज़ा है कि उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर काजी हबीब अहमद साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करूँ कि आपकी सरपरस्ती और आपकी तरबियत और आप ही की ईमा पर एक प्रोग्राम जो है महफिलों को भी अंजाम तक पहुँचा है। और मैं तमाम से माजरत खाती हूँ कि मैं पूरी तरह से गुफ्तगू नहीं कर रहा, अल्फाज नहीं आ रहे, पता नहीं क्या हो रहा है। बहरकैफ आप तमाम से माजरत चाहते हुए फिर एक बार आप तमाम की खिदमत में शुक्रिया अदा करते हुए इस वादे के साथ इजाज़त लेता हूँ कि इंशाअल्लाह अगला प्रोग्राम हमारा यकीनन ऑफलाइन होगा और आप तमाम लोग हमारे साथ बनफ्स नबी शरीक रहेंगे। हम सब मिलकर तो शुरूत भी होगा हमारे साथ और फिर चाय वाय भी होंगी। न सिर्फ चाय वाय बल्कि हम सब मिल बैठ कर एक खाने में ही सही एक लंच में हम सब मिलकर एकजुट होकर तबादले ख्याल के लिए इंशाल्लाह मौका होगा। उस मौके के इंतज़ार के साथ और उस मौके में आप तमाम से जुड़ने के वादे के साथ मैं विदा लेता हूँ। तमाम को हदिया तबरीक पेश करता हूँ इस अंजुमन की जानिब से। तमाम का बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सदर इजलास से इजाज़त चाहता हूँ कि क्या इस प्रोग्राम को हम यहीं पे इख्तिताम कर दें, बंद कर दूँ अभी इस मीटिंग को। ठीक है, अब हम यहीं पर इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। इस लिंक को अभी बंद करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।